Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is Introduction to QBasic. Friends, we have learned that algorithm and flowcharts are the initial steps in developing a program. To write a program, we need a specific language called programming language. QBasic is also a programming language that you will learn in this chapter. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में. ये इनिशियल स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने में. ठीक है, हमें किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और QBasic जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. What is QBasic? QBasic stands for Quick Basic is a high-level programming language. It was developed by Microsoft in 1985. It is one of the version of BASIC, which is a popular programming language for beginners. QBasic is simple and easy to learn. QBasic is available free of cost. That is why it is called a freeware. तो QBasic जो है ये बिगिनर्स के लिए एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, इसलिए इसे फ्रीवेयर भी कहा जाता है. हिस्टोरिकल बाइट बेसिक इज एन एक्रोनिम ऑफ बिगिनर्स all purpose symbolic instruction code. It was written by two mathematicians, George Kemeny and Thomas Kurtz at Dartmouth College in 1963 for teaching programming to undergraduate students. तो बेसिक जो है वो एक्रोनिमिक है. ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे आपको दिया गया है. इसे टू मैथमेटिशियन द्वारा क्रिएट किया गया था, लिखा गया था 1963 में. Starting QBasic. To start QBasic, double click the executable file qbasic.exe placed on the Windows desktop. A blue screen opens up. It is known as the QBasic Integrated Development Environment, QBasic IDE. This is where QBasic programs are written. This is also called QBasic Editor Window. तो आप QBasic को कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंपली आपको QBasic एक फाइल जो है वो इजीली आपके डेस्कटॉप पे मिल जाएगी. जैसे आप इसे ओपन करते हैं आपके सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन जो है वो खुल जाती है. ठीक है, QBasic Editor Window. The QBasic Editor Window is the screen where we write and edit the programs. It has various parts as shown in the given picture. तो आपकी जो QBasic विंडो होती है, एडिटर विंडो होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हो, राइट कर सकते हो. Menu bar. The menu bar contains the various menus and each menu contains a set of commands related to various operations like creating, editing, viewing, executing and debugging the programs that we write in the QBasic editor. Program area, it is the empty area in the middle of the editor screen where we write and edit our program. Program title, the program title is the name of the program that is currently being displayed in the program area. Immediate window, it is the area where you can execute a command without writing it as a part of the program in the program area. You can do this by writing a command in the immediate window and pressing the enter key. Scroll bars, there are two scroll bars in the QBasic editor screen, the horizontal scroll bar and the vertical scroll bar. Status bar, the status bar is the bar at the bottom of the editor screen. It displays the combination of keyboard keys that can be used to perform some very common operations. तो मेन्यू बार जो होता है इसमें आपके वेरियस मेन्यूज़ होते हैं. ठीक है, और इसमें आपके अलग अलग सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. प्रोग्राम एरिया जो होता है ये आपका वो एरिया आता है जहाँ पे आप अपने स्क्रीन को एडिट करते हो. ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को वहाँ पे एडिट करते हो. प्रोग्राम टाइटल जो होते हैं ये आपके प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले करते हैं. इमीडिएट विंडो जो होती है ये आपके कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ की जाती है विदाउट राइटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द
प्रोग्राम। आप इसमें अपने कमांड्स को राइट कर सकते हो और आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो एंटर की को प्रेस करके। स्क्रॉल बार जो होते हैं ये आपके क्यू बेसिक स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं। 2 स्क्रॉल बार्स ये होते हैं, यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेटस बार जो होता है ये आपके बॉटम ऑफ द एडिटर स्क्रीन होता है। ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड कीज के साथ भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने को मिल जाते हैं। Basic menu operations in QBasic Editor. The followings are some of the common menu operations in QBasic Editor. Menu option, purpose, steps. New creates a new program file. Click on file and new. Open opens an existing program file. Click on file and open. Save saves a program file. Click on file and save. Start runs a program. Click on run and start. Exit exits QBasic. Click on file and exit. तो यहाँ पे कुछ आपको ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं या जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। Elements of QBasic. Before writing the first program using the QBasic language, let us get familiar with the basic elements that make up QBasic program. Constant are the fixed values that do not change during the execution of a program. They can be either numeric or string. Numeric constants consist of only digits with or without decimal points. They can be either positive or negative, such as 7, 28.5, minus 43, minus 43.75, etc. String constants consist of letters or numbers or a combination of both. They are always enclosed within double quotes. For example, double quotes Ajay, double quote A dash 47, double quote and double quote 764, double quote. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं QBasic के एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, जिनके बिना आपका जो QBasic प्रोग्राम है वो अधूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स आपके फिक्स वैल्यू होते हैं जो आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं किए जा सकते। ये आपके न्यूमेरिक भी हो सकते हैं या फिर आपके स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं? ये आपके सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होते हैं, इसमें आपके अल्फ़ाबेट नहीं आते। अब आपके ये जो न्यूमेरिक्स होते हैं इसमें आपके पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में आपके लेटर और नंबर्स या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होंगे ये आपके डबल कोट के अंदर ही आएंगे। नाउ वेरिएबल्स। A variable refers to the location in memory that contains a value. The value of a variable can change during the program execution. There are two types of variables, namely numeric variables and string variables. Numeric variables are variables that store numeric constant on which calculation can be done. For example, in the expression s equal to 85 is a numeric variable that has been assigned a constant value 85. Numeric variable s equal to 85 numeric constant. String variable are variables that store string constants. The name of a string variable is always followed by a dollar sign. For example, in the expression a dollar equal to double quote p dash 47 Delhi double quote semicolon a dollar is the string variable that has been assigned a string variable double quote p dash 47 Delhi double quote. String variable a dollar equal to double quote p dash 47 Delhi string constant. तो हम वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं ये आपके मेमोरी जो होती है आपके लोकेशन की, जो कि एक वैल्यू कंटेन करती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप इजीली इन्हें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपके टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि नेमली न्यूमेरिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो होते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो न्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर करके रखते हैं और यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस को किया जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं ये आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। इसमें आपके नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल जो होती है वो हमेशा डॉलर साइन के साथ ही
फॉलो की जाती है। तो इसके जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके इस तरीके से लिखे जाते हैं, तभी वो वैलिड माने जाते हैं, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माने जाते। नाउ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट डिफाइन द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन कांस्टेंट एंड ऑब्लिक और वेरिएबल। लेट अस learn about some important operators that are commonly used in QBasic. Arithmetic operators are used to do mathematical operations on numeric constants or variables. Operator, operation, example, result. Plus addition, 7 plus 3, 10. Minus subtraction, 7 minus 3, 4. Star multiplication, 7 into 2, 14. Oblique division, 8 oblique 2, 4. Caret exponentiation, 8 caret 2, 64. Relation operators are used for doing comparison in a program. They compare numeric or string values and return either true or false as a result. Operator, operation, example, result. Equal to 7 equal to 3, false. Greater than 7 greater than 3, true. Less than 7 less than 3, false. Not equal to 7 not equal to 3, true. तो यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। ये आपके सिंबल्स होते हैं जो आपके टाइप ऑफ ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, जो कि आपके कांस्टेंट पे ये आपके परफॉर्म किए जाते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स पे इनको परफॉर्म किया जाता है। तो कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों में अप्लाई होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पे। तो आपका जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेशन है, एग्जाम्पल और रिजल्ट यहाँ पे आपको बताए गए हैं। टेबल के माध्यम से आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके रिलेशन ऑपरेटर्स। ये आपके कंपैरिजन, किसी भी प्रोग्राम में जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, कि ये उससे बड़ा है या उससे छोटा है या उसके बराबर है या उसके बराबर नहीं है। तो ऐसे जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, ये इनके थ्रू किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, वो आप अप्लाई करते हो दो नंबर्स को या दो वेरिएबल्स को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए। Now, do you know the equal to operator is also used as an assignment operator in programs for assigning values. For example, in a equal to 5, the equal to operator assign the value 5 to the variable a. तो आपके जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये आपके किसी भी प्रोग्राम में एक वैल्यू को, एक ऑपरेटर को वैल्यू असाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कभी कभी जैसे मैथ्स में भी होता है, हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो x है या इसकी वैल्यू जो है y है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि a की वैल्यू जो है वो 5 है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन भी यूज़ करते हैं किसी की वैल्यू को दर्शाने के लिए। Now commands. QBasic provides various commands for performing different tasks. A single command when written in a program is known as a statement. Let us learn about some important QBasic commands. Print command. The print command is caused to display output on the screen. This output can be text, numbers or values stored in the variable, etc. Syntax: print data. Example: print 476 will print 476 on the output screen. Print welcome to QBasic will print welcome to QBasic on the output screen. Print $a will print the value stored in the variable $a. We can use the print command for printing more than one value in a single line by separating the values using either a semicolon or comma. तो कमांड्स क्या होती हैं? QBasic में आपको बहुत सारी कमांड्स जो हैं वो दी जाती हैं ताकि आप वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सकें। आपकी सिंगल कमांड जो होती है वो आपके किसी भी प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, इन्हीं स्टेटमेंट, इन्हीं कमांड्स के बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं प्रिंट कमांड के बारे में। प्रिंट कमांड जो होती है वो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। ये जो आउटपुट होता है ये आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यूज़, वेरिएबल्स भी जो आपके स्टोर होते हैं ये आपको दिखाते हैं प्रिंट कमांड के थ्रू। इसका सिंटेक्स, जो इसका रूल होता है वो इस तरीके से होता है, आपको प्रिंट लिखना है, देन आपको लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आपको डेटा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर है, आउटपुट है, वो प्रिंट होगा। आप प्रिंट कमांड को यूज़ कर सकते हैं कोई
दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक सिंगल लाइन में, ठीक है। यू यूज़ अ सेमीकोलन व्हेन यू वांट टू प्रिंट वैल्यूज़ continuously. For example, print double quote Raj, double quote Manu, double quote Shanu will print the names continuously as output Raj, Manu, Shanu. You can use a comma when you want to separate values. For example, print double quote Raj, comma double quote Manu, comma double quote Shanu will print the names as output Raj, Manu, Shanu. तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन और कॉमा जो है उनको यूज़ करना बताया कि कैसे हम उनको यूज़ करके किसी भी आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गैप नहीं दिखाना वर्ड्स के बीच में तो आप सिंपली डबल कोट से, सेमीकोलन से उसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको गैप दिखाना है, उन वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, तो आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं। नोट, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ क्वेश्चन मार्क इन प्लेस ऑफ प्रिंट कमांड, दैट इज बोथ the following commands are equivalent and give the same result. Print double quote welcome to QBasic, question mark double quote welcome to QBasic. अगर आप print command नहीं लिखना चाहते तो आप उसकी जगह question mark भी लगा सकते हैं, दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलेगा। Let command. The let command is used to assign a value to a variable. Syntax: let less than variable greater than equal to less than value greater than. Example, let a equal to 34, assigns 34 to the variable a. Let b equal to 7 plus 3, sum up 7 and 3 and assign the result i.e. 10 to the variable b. Let name dollar equal to double quote Sangini, assign Sangini to the variable name dollar. अब लेट कमांड के बारे में जान लेते हैं। लेट कमांड जो होता है ये आपके वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको इसका रूल, सिंटेक्स जो है वो आपको बताया गया है। इनपुट कमांड, द इनपुट कमांड इज यूज्ड टू रिसीव डेटा फ्रॉम द यूजर। द यूजर कैन एंटर अ स्ट्रिंग और अ नंबर विच इज देन स्टोर इन अ वेरिएबल। सिंटेक्स: इनपुट लेस देन वेरिएबल नेम ग्रेटर देन और इनपुट लेस देन double quote message string double quote greater than. Example, input A. Here no message will be displayed but the user will be promoted to enter a value for the variable. Input double quote enter your name double quote name dollar. Here a message will be displayed to tell the user what he she should enter at the prompt. Input statement can also be used to enter more than one value in a single line. For example, input double quote enter 4 values double quote A, B, C, D. अब हम बात करेंगे इनपुट कमांड के बारे में। इनपुट कमांड जो होता है ये आपका यूज़ किया जाता है किसी भी यूज़र से डेटा को रिसीव करने के लिए। यूज़र जो होते हैं ये आपके स्ट्रिंग और नंबर्स को एंटर कर सकते हैं जिसमें आपके वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे आपको रूल बताए गए हैं और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताया गया है। इनपुट स्टेटमेंट जो होती है इसको आप एक या एक से ज़्यादा वैल्यू को डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं सिंगल लाइन में। नाउ एंड कमांड, दिस कमांड इज गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सिंटेक्स: एंड। राइटिंग एंड इन अ प्रोग्राम इज ऑप्शनल। CLS command. CLS command is used to clear the output screen. It is generally put at the beginning of the program so that when the program is executed, the output screen gets cleared. Syntax: CLS. एंड कमांड जो होता है ये आपके हर एक प्रोग्राम के एंड में दिया जाता है, उसको एंड करने के लिए दिया जाता है। इसी तरीके से जो आपका CLS कमांड होता है ये आपके आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आपके बिगिनिंग से पहले ही दे दिया जाता है सो दैट आपका जब आंसर निकलने लगे या आप एंड पॉइंट पे पहुंचने लगो तो ये उसको साथ साथ क्या करता रहे, आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता हुआ चले। प्रोग्रामिंग इन QBasic. Following are the sample programs using the above commands. Program 1 to add two numbers and display their sum. CLS: let A equal to 78, let B equal to 32, let C equal to A plus B. Print double quote the sum is colon double quote semicolon C and.
तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग बताई गई कि फॉलोइंग प्रोग्रामिंग जो है ये आपका एक तरह का सैम्पल आपको बताया गया कि इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है क्यू बेसिक में। अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप सबसे पहले CLS लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ये आपके बिगनिंग में ही आएगा। उसके बाद आपका जो सिंटेक्स है कि आपने मान लिया कि जो A है उसको 78 मान लेते हैं, B को 32 एंड C को A+B। तो इस तरीके से आपका जो प्रिंट है वो सम निकल आएगा और आपका जो प्रोसीजर है, जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। प्रोग्राम 2, to input two numbers and calculate their difference. CLS input double quote enter first number colon double quote semicolon A, input double quote enter second number colon double quote semicolon B, let difference equal to A minus B, print semicolon the difference is colon double quote semicolon difference end। तो एक और एग्जांपल आपको बताया गया है, अगर आपको दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दो नंबर को आपको माइनस करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रोग्राम 3, टू शो द यूज ऑफ प्रिंट कमांड। CLS प्रिंट डबल कोट वेलकम डबल कोट सेमीकोलन डबल कोट टू डबल कोट क्यू बेसिक डबल कोट प्रोग्रामिंग, प्रिंट डबल कोट वेलकम डबल कोट टू डबल कोट क्यू बेसिक डबल कोट प्रोग्रामिंग एंड। तो आपका प्रोग्राम 3 में आपको बताया गया है कि कैसे आप प्रिंट कमांड को यूज करते हैं। नाउ प्रोग्राम 4, टू प्रिंट नेम एज एंड क्लास। CLS इनपुट डबल कोट एंटर योर नेम कोलोन डबल कोट सेमीकोलन एंड डॉलर, इनपुट डबल कोट एंटर योर एज कोलोन डबल कोट सेमीकोलन A, इनपुट डबल कोट एंटर योर क्लास कोलोन डबल कोट सेमीकोलन C, प्रिंट double quote your name is colon double quote semicolon and dollar, print double quote your age is semicolon colon double quote A, print your class is double quote C and। तो यहाँ पे हमें बताया है प्रोग्राम 4 में कि कैसे आप अपना नेम एज एंड क्लास जो है वो प्रिंट करते हैं। नाउ प्रोग्राम 5th, to let the user enter marks in 5 subjects and display their average. CLS input double quote enter marks in 5 subjects colon double quote semicolon A B C D E, let average equal to A plus B plus C plus D plus E divided by 5, print double quote your average marks are कोलोन डबल कोट सेमीकोलन एवरेज एंड। तो यहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट में आपके जो एवरेज मार्क्स हैं उन्हें आप डिस्प्ले करेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ लेट अस रिवाइंड। QBasic इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू टीच कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू बिगनर्स। QBasic screen is also called QBasic editor where we write programs. QBasic screen is divided into 2 parts, program window and immediate window. A constant is a value that remains fixed during the execution of a program. Variables are space in memory where values are stored. Print, let, input and CLS are the basic QBasic commands. तो इस चैप्टर में हमने जाना QBasic एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो कि काफ़ी सिंपल है और इजी टू यूज़ है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।